Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, so far we have discussed the chapter number 1, 2, and 3. That is the branch of physics called electricity. So as I told you in the last lecture, that basically your physics of a 12th standard is divided into 4 branches: electricity, magnetism, optics, and modern physics. From that, electricity branch almost we had finished, and we are discussing a magnetism. So what is so far we had discussed? So we had seen that uh, whenever the current passes from the wire, we got the 3 conclusions. Number one, that is the Oersted observation. Number one, when the current passes from the wire, a magnetic field produced around the wire. Number two, if the wire is straight, then the magnetic field is in the circular in the shape around the wire. So magnetic field lines around the wire is a circular in the shape. And number three, if you invert the direction, if you change the direction of current, then the direction of the magnetic field also gets changed. So these are the conclusions we are obtained from the Oersted observation. After that, we had discussed the magnetic force. Uh, if the charge Q is moving in the magnetic field with the velocity v, then we come to know that the magnetic force on the charge can be given by q v cross b. So friends, uh, so far we had discussed the magnetic force. So basically we had discussed 2 kind of magnetic force, 2 cases on the magnetic force. So I am writing some conclusions here so that you get the idea about the what we had done with the magnetic force, what we had learned in the magnetic force. Okay. So friends, am I audible to you, friends? Am I audible to you, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the topic is a magnetic force. So what we had learnt, we had learnt if the Q charge force on a charge Q moving with velocity v, in a magnetic field B, can be given by, so what was that formula was, F is equals to Q into, so that was the magnetic force. And there are some characteristic of this force. We had seen that the force is in the direction of V cross B. So as this force is in the direction of V cross B, but V cross B is perpendicular to the velocity. Hence, as a V cross B is perpendicular to the velocity, hence this force is also perpendicular to the velocity. अब कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. And in that kind of circumstances, only the direction of the velocity gets changed, while magnitude of velocity does not going to be changed.
तो जब कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस वी हैड सीन दैट द चार्ज कैन परफॉर्म two kind of motion. Number one, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नंबर टू, हेलिकल मोशन. तो हमने ये बहुत ही डिटेल में, आपके टेक्स्ट में नहीं था बट मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा. और अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एंगल फॉर्म करके एंटर हो रहा है, कुछ एंगल बना के एंटर हो रहा है, तो वो हेलिकल मोशन करेगा. वो क्यों हेलिकल मोशन करेगा, वो पूरा थ्योरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया. एंड नंबर टू, वी आल्सो हैड सीन दैट if a wire of a length L, more precisely I should say a straight wire. If a straight wire of a length L, if a straight wire of a length L is placed in a uniform magnetic field, B, then force on this wire. So the formula of the force was I L क्रॉस B. सो ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है और वो स्ट्रेट है तो उसका फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी. एंड इफ द वायर इज नॉट स्ट्रेट, if wire is not straight, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसका जो फोर्स होता है दैट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी. सो दैट इज द फॉर्मूला इफ द वायर इज नॉट स्ट्रेट. सो इसके बेस पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं. So from this statement, one more important conclusion we can derive here. Suppose कि कहीं पे uniform magnetic field है. Assume that here is a uniform magnetic field which is in this direction. Suppose कि ऐसा कोई uniform magnetic field यहाँ पे है, magnetic field lines parallel and equidistant है. और ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर लूप है, मतलब क्लोज्ड लूप है वायर का, करंट कैरिंग लूप है. तो कोई मुझे बता पाएगा कि हाउ मच द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट लूप? So anybody will give me the idea how much the force acting on the current carrying loop in the uniform magnetic field? कोई बताएगा? Magnetic force on a current carrying loop. Magnetic force on the current carrying loop. Sir, बोलो. Q into V cross B. क्यू का तो बात ही नहीं है यहाँ पे. करंट So integration placed ideal. in, let me complete, uniform magnetic field
देखो वायर की बात है तो वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला है, केस नंबर 2 वाला, एंड इट इज नॉट द स्ट्रेट वायर। तो ये स्ट्रेट वायर नहीं है, तो इसका मतलब कि यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, दिस वन इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन आईडीएल क्रॉस बी। So this is comes out to be integration with respect to the closed loop of vector dl। अब सोचो फ्रेंड्स, क्लोज्ड लूप के लिए अगर आप वेक्टर का समेशन करते हो, ये जो सेगमेंट है उसका वेक्टर सम करते हो क्लोज लूप के लिए, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर अगर क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है तो उसका वेक्टर सम क्या होता है। कोई भी क्लोज्ड लूप अगर होता है किसी भी वेक्टर का, तो उसका वेक्टर सम क्या होता है, 0। उसका वेक्टर सम 0 होता है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा कह सकते हैं इट इज लाइक अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो फ्रेंड्स क्लोज्ड लूप का लाइन इंटीग्रल अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन इंटीग्रल करते हैं तो वो 0 आता है, and because of that a force on the current loop placed in the magnetic field is always 0। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। so force on the current loop in the magnetic field is always 0। देखो मेरी बात सुनो, इंटीग्रेशन डीएल अगर करते हैं हम विदाउट द वेक्टर साइन, और वो सर्कल है, सर्कुलर सर्कुलर क्लोज्ड लूप में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं विदाउट द वेक्टर साइन, तो उसका आंसर आता है 2πr। वो हमने शायद कहीं पे किया होगा, हाँ वो हमने एक आध दो जगह पे 11th या पता नहीं मुझे। बट अगर आप वेक्टर नहीं स्केलर सम करते हो तो इट इज लाइक अ पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ होता है 2πr। बट अगर आप क्लोज्ड लूप का वेक्टर सम करते हो तो उसका आंसर 0 आता है। So that is to be noted. What is the difference between these two integration? What is the difference between these two integration? That is to be noted. So here one thing is confirmed, that when we place a closed wire current carrying loop, closed loop in the magnetic field, it will experience the net force is a 0। तो उसके ऊपर magnetic force 0 होता है। So that is what is the important thing I want to talk। तो ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और हेलिकल मोशन कैसे होता है, पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होती है, वो सारा चीज हमने लास्ट में डिस्कस किया था। आज हम कुछ और टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। कुछ और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कर दिया था, एंड क्वेश्चन नंबर 12 या velocity selector, it is an important theory। Question is discuss the velocity selector। Friends, we had discussed about the Lorentz force। क्या मैंने लॉरेंस फोर्स वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था? क्वेश्चन नंबर आई थिंक या ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 वाज द लॉरेंट फोर्स। तो जब कोई रीजन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, कोई रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, सो ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी उसके ऊपर लगेगा। when the electric and magnetic field both are present, so charge will experience both the electric and magnetic force simultaneously। So the resultant force on the of the combined effect of electric and magnetic force is known as a Lorentz force। तो उसका कंबाइंड इफेक्ट के द्वारा जो फोर्स मिलता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, दैट लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स। अब मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो QE है, एंड मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है Q इंटू V क्रॉस B है। लेट अज्यूमिंग दैट ओके, लेट इट बी द एज इट इज। चलो ये जो है वो लॉरेंट्स फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, ये हम टॉपिक नेम इज अ वेलोसिटी सिलेक्टर।
So velocity selection, who is going to select the velocity, what is the topic is, you will come to know within a 2 or 3 minutes. तो हमको ये लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला पता है. अब सपोज ऐसा हम करते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हम ऐसा अज्यूम करते हैं, ओके, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी है चार्ज का, कोई चार्ज एक्स डायरेक्शन में वही वेलोसिटी के साथ एंटर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने वाई डायरेक्शन में लगा दिया है एंड मैग्नेटिक फील्ड को मैंने जेड डायरेक्शन में लगा दिया है. जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो उसको मैंने एक्स डायरेक्शन में अज्यूम किया है चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसको मैंने वाई डायरेक्शन में अज्यूम किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना मैंने उसको जेड डायरेक्शन में अज्यूम किया हुआ है. So I can write down the formula of electric, magnetic and velocity vector in this manner. So I can say here that uh, electric field can be written in the vector form as its magnitude E, and the unit vector as it is in the y direction, the unit vector in the y direction is j cap. Velocity के बारे में अगर लिखना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि v is equals to v I cap. एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो आई कैन से इट इज अ बी जे के. तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो Q इंटू ई है. तो चार्ज Q इज एज इट इज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में क्या इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कराए से इट इज ई जे के. इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? मेरी बात फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके. मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है क्यू वी क्रॉस बी. अब क्यू वेलोसिटी जो है ना वो वी आई कैप है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी जे कैप है. अब ये हो जाएगा क्यू वी बी और बाकी बचेगा आई कैप क्रॉस जे कैप. तो फ्रेंड्स आपको पता होगा आई जे के आई जे के आई के आई जे. तो फ्रेंड्स आई जे के आई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी जो है ना वो बी के कैप है. सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, बी का बी के कैप होता है. बी इज इन द जेड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज इन द एक्स, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही है बट जो वेक्टर बी है वो जेड डायरेक्शन में है, तो बी के कैप हो जाएगा. मतलब यहाँ पे आई के होगा. अब फ्रेंड्स सोचो कि आई जे के है, के जे आई है, आई जे के आई जे. अब के आई जे है तो आई के क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस, Minus. हाँ इट विल बी अ माइनस जे कैप. तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी वेक्टर, देखो कोई रीजन ऐसा है, कोई रीजन ऐसा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वहां से मैंने एक चार्ज पास किया, वो चार्ज मैंने ऐसे पास किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर है एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर, मतलब तीनों चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर. So on that kind of circumstances, we come to know that from equation number 1 and 2, so electric field and electric force and magnetic force are mutually opposite. देखो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस जे कैप के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स माइनस जे कैप के डायरेक्शन में है. तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. एंड सपोज अगर ये QE का वैल्यू एंड QVB का वैल्यू सेम हो जाए, सपोज ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट फोर्स नाउ? Two QE.
नहीं नहीं नहीं, देखो आप एक क्यू ई जे कैप है, दूसरा क्यू बी माइनस जे कैप है। ऐसे बोल रहा हूँ तो कि क्यू तो का वैल्यू जीरो हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। डायरेक्शन तो वैसे ही अपोजिट है, और ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्ज? zero. So net force on the charge comes out to be 0. Friends, this result is very surprising. Why it is surprising? Because though the electric and magnetic field both are present, electric field, magnetic field दोनों present है, but still then also दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? तो वहां पे दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसा हो सकता है। कौन से दो कंडीशन? नंबर वन, एक तो ये तीनों वेक्टर्स Q, V एंड B ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। एंड नंबर टू, QE का वैल्यू एंड QVB का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिजल्टेंट फोर्स भले ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों प्रेजेंट है तो भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मतलब कौन सा कंडीशन अचीव होना चाहिए? तो QE इक्वल्स टू QEB। क्या इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ E इज इक्वल्स टू Q, E इज इक्वल्स टू VB? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इन केस ऑफ दैट V इज इक्वल्स टू E बाई B? ये सेम ही हुआ ना, देखो तो ये सेम ही हुआ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. तो Yes, sir. मतलब क्या क्वेश्चन इज दैट कि क्या कर क्या रहे हैं ये सब, क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये कर क्या रहे हैं? जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। आप थोड़ी 5 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट क्या हमने अब ऐसा कह सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड अगर वेलोसिटी जो है ना वो उसका ये कंडीशन फॉलो हो रहा है E बाई बी, देन वी कैन से द रिजल्टेंट फोर्स, अब ये दोनों कंडीशन अगर अचीव हो रही है, we can say the net force becomes zero. It is a Lorentz force. Net Lorentz force becomes zero, and hence in this kind of situation charge move without any deviation। मतलब चार्ज कोई भी डेविएशन के बिना स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। चार्ज विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट अवे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है, हमको हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो सपोज डॉट का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? ये डॉट का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? Outward field. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वाई डायरेक्शन में है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो सारे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, so these are the electric field lines here, that is in the y direction। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, एंड हमारा जो चार्ज है, हमारा जो चार्ज है वो एंटर हो रहा है x डायरेक्शन में से। अवर चार्ज एंटर्स इन द x डायरेक्शन, तो वो जो चार्ज है वो x डायरेक्शन से एंटर हो रहा है। मतलब तीनों चीज, वेक्टर वेक्टर b, वेक्टर e एंड वेलोसिटी वेक्टर, ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों चीज परपेंडिकुलर है, मतलब ये कंडीशन तो अचीव हो रहा है फर्स्ट। एंड सपोज जिस चार्ज का वेलोसिटी, जो चार्ज का वेलोसिटी ये दूसरा कंडीशन भी फॉलो करेगा तो उसका क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, वो स्ट्रेट अवे चला जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा। जो चार्ज ऐसा है कि जिसका वेलोसिटी भी E बाई बी है तो उसका क्या होगा, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो लगेगा।
तो वो स्ट्रेट अवे चला जाएगा। बट बाकी कोई चार्ज है, अगर दूसरे कोई चार्ज है कि जिसका वेलोसिटी ई बाई बी कंडीशन का अचीवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। तो जो चार्ज का वेलोसिटी ई बाई बी कंडीशन को अचीव कर रहा है, तो वो विदाउट डेविएशन जाएगा, और बाकी के सारे चार्ज कुछ ना कुछ डेविएशन फील करेंगे। तो इसके द्वारा मैं कुछ स्पेसिफिक चार्ज को इसके द्वारा मैं कोई स्पेसिफिक चार्ज को मैं सेपरेट कर सकता हूं, बाकी सब चार्ज से उसको मैं अलग कर सकता हूं। मतलब कौन सा चार्ज अलग हो जाएगा, जिसका वेलोसिटी ई है वो स्ट्रेट अवे जाएगा, तो मतलब जो स्ट्रेट अवे मुझे मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड चार्ज है, तो बाकी सब डेविएट हो जाएगा। एंड दैट इज, दिस इज नोन एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। तो कुछ स्पेसिफिक चार्ज, सर वॉइस लैग है। हाँ, कुछ आपके मोबाइल के सारे एप्लीकेशन क्लोज कर दो और ऐसी जगह पे बैठो कि जहाँ पे मोबाइल का टावर बराबर आ रहा है। तो जो चार्ज, फ्रेंड्स क्या मेरी आवाज आपको आ रही है प्रॉपर्ली? લેગ થાય છે. देख हो रहा है क्या? हाँ सर। अभी कैसा आ रहा है देखो, आ रहा है क्या? अब सही है सर। ओके। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या कर पाए, तो बहुत सारे चार्ज, देखो मैंने क्या किया कि कोई रीजन है वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रख दिया, और बहुत सारे चार्ज को मैंने वहां से परपेंडिकुलरली एंटर किया। बट ओनली दोज चार्ज, the charges which are having velocity is equals to e by b, only those charge will get straight away, will go straight away without deflection, because इसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा, और बाकी सारे जो चार्ज है उसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब वो जो चार्ज है उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाई इट इज दिस फिनोमिनन, दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई ये तो चलो समझ में आ गया कि हम कुछ चार्ज को, ऐसे चार्ज को कि जिसका वेलोसिटी ई बाई बी है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं दूसरे चार्ज से, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स आपको यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड डिटरमाइंड द रेशियो ई बाई एम। चार्ज एंड मास का रेशियो जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था। तो इलेक्ट्रॉन्स का ई बाई एम उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, चार्ज अपॉन मास उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो जे थॉमसन हैड डन दिस थिंग बाय दिस कंसेप्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कंसेप्ट इज आल्सो यूज्ड इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये चार्ज को, कुछ स्पेसिफिक चार्ज को सेपरेट करने का प्रोसेस मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज होता है। जे थॉमसन ने भी यूज किया था। कैसे यूज किया था इसका, क्या जे थॉमसन ने इसका कैसे यूज किया था मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, इसका कैसे यूज होता है वो भी छोड़ दो, उसका अभी जरूरत नहीं है। बट इसका यूज कुछ प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन के लिए हो सकता है। सो दैट इज नोन एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। तो कोई अगर आपको ऐसा पूछता है वर्ड फॉर्म में कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखते हैं और वहां से चार्ज को भी अगर परपेंडिकुलरली पास करते हैं, तो कुछ चार्ज ऐसे होते हैं कि जो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट अवे जाते हैं, जिसका वेलोसिटी ई बाई बी हो, और बाकी के सारे चार्ज कुछ ना कुछ डेविएशन फील करेंगे। तो ऐसे हम कुछ चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं, एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये थ्योरी हुआ वेलोसिटी सिलेक्टर। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। तो लेट अस सी व्हाट इज रिटन। देखो यहाँ पे वही किया हुआ है। क्या आपके मोबाइल के अंदर ये स्क्रीन आ रहा है? यस सर। ओके। तो क्या सर वो बोलो।
सर वो गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्शन भी कुछ यही एक्सपेरिमेंट था ना? नहीं, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड अच्छा। जो रदरफोर्ड ने किया था न्यूक्लियस का साइज मेजर करने के लिए, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, वो टोटली डिफरेंट था। इसका लेना है थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन, आप नेट पे सर्च लगाना कि थॉमसन। ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो आप नेट पे सर्च लगाना थॉमसन एक्सपेरिमेंट to find the specific charge of electron. So you will get this thing. You also will able to see that this velocity selector concept is used over there. तो वो आपको मिल जाएगा वहां पे। बट ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके। Okay, let me once again share. Okay. हाँ आप देखो। Okay, now am I audible to you friends? यस सर। ओके फाइन। तो यहाँ पे वही चीज किया हुआ है, देखो ये कंडीशन अचीव किया है, v इज इक्वल टू बाई बी। दिस कंडीशन देखो यहाँ पे देखो ये रहा, this condition can be used to select the charged particle of a particular velocity out of the beam containing a charges moving with the different speed। मतलब अलग अलग स्पीड से बहुत सारे चार्जेस मूव हो रहे हैं और मुझे कुछ स्पेसिफिक स्पीड वाले चार्ज ही मुझे उसको सेपरेट करना है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो द क्रॉस्ड ईबी का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, hence the crossed E and B fields therefore serve as a velocity selector. Only particle with the speed v equals to E by B pass undeflected through the region of crossed field. This method was employed by J.J. Thomson in 1897 to measure the charge to the mass ratio of electron. This principle is also employed in the mass spectrometer, a device that separates the charged particle, usually ions, according to their charge to mass ratio. तो फ्रेंड्स ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इंपॉर्टेंस है। एंड जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फाइंड किया था, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब फ्रेंड्स याद रखना, कहीं पे भी अगर स्पेसिफिक चार्ज वर्ड है तो उसका मतलब चार्ज नहीं है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब ऐसा होता है चार्ज टू द मास रेशियो। कोई पार्टिकल का चार्ज एंड उसका जो मास है उसका रेशियो जो है उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी सिलेक्टर। उसके बाद फ्रेंड्स ये साइक्लोट्रॉन का थ्योरी है, बट ये पूरा थ्योरी है ना 3 डायमेंशन है, तो प्रोबेबली ये थ्योरी हम ऑफलाइन में लेना पड़ेगा, बिकॉज पूरा मतलब बहुत ही 3D आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेट अस राइट नाउ स्किपिंग दिस थ्योरी एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये साइक्लोट्रॉन का थ्योरी मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन किया, 13 को 14 एंड 15 एंड 16 ये 4 क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। A 2 marker important question. State and explain the Biot-Savart law for the magnetic field produced by the current element. चलो ये that is the basic question. चलो फ्रेंड्स मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। मुझे ये बताओ कि which is the cause of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? Because of charge.
ओके, Stationary. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? मास के। ग्रेविटेशनल फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो मास के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? The cause of a magnetic field. Moving charge. Moving charge. हाँ. मूविंग चार्ज, एक बच्चे ने बताया मूविंग चार्ज। और अपार्ट फ्रॉम द मूविंग चार्ज और मैं क्या कह सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है? मूविंग चार्ज के द्वारा तो प्रोड्यूस होता ही है। और कुछ बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? Changing electric field. नहीं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द, देखो आप उल्टा बोल रहे हो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ये बराबर नहीं है। हम मूविंग चार्ज के बदले इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। मूविंग चार्ज के बदले इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि करंट कैरिंग वायर, ऑर्स्टेड ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया कि करंट कैरिंग वायर जो है कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है एंड कौन से डायरेक्शन में है, तो वो फाइंड किया बायोट एंड सावर्ट ने, दोनों साइंटिस्ट ने मिलके ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट बनाया। सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव द बायोट सावर्ट लॉ, बट वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बायोट सावर्ट लॉ। उसका प्रूफ हम डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट क्या है वो उसको समझने की ट्राई करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट बायोट सावर्ट लॉ। So friends, let us, we are having some current carrying wire. कोई करंट कैरिंग वायर है, तो ये करंट कैरिंग वायर के द्वारा उसके आसपास के रीजियन में डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होगा? अरे बता भी दो। इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक है, ये करंट कैरिंग वायर जो है वो। मैग्नेटिक। Magnetic field. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो ऑन रखना है। फ्रेंड्स प्लीज डोंट क्लोज योर वीडियो, आपका वीडियो कंपलसरी ऑन रखना है। डोंट मेक योर वीडियो ऑफ। आप वीडियो ऑन स्टेट पे रखो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव द पर्सन। फ्रेंड्स, आपके वीडियो आपको ऑन रखना है। विनीत, विश्वास, हर्ष त्रिवेदी, प्रियांश सोलंकी, दिव्यराज वाघेला, नंदेश, विश्वा। ओके, ये करंट कैरिंग वायर है तो डेफिनेटली वो उसके आसपास क्या करेगा? बोलो, अभी तो हमने डिस्कस किया कि करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके आसपास क्या? Magnetic field generate करेगा. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये करंट कैरिंग वायर है तो डेफिनेटली वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड करने के लिए बायो एंड सावर्ट had designed one law
तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और ये एलिमेंट लाइन एलिमेंट है और उसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, करंट एलिमेंट एक नया क्वांटिटी पिक्चर में आया। करंट एलिमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आइडियल जो है ना उसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। Current element is a vector quantity and the direction of the current element is taken in the direction of current. करंट के डायरेक्शन में ही उसका डायरेक्शन लेना होता है। तो अब Biot and Sawant had said that a magnetic field produced by a current element can be given by mu naught upon 4 pi IDL cross r cap upon r square, where r cap is the unit vector of the position vector r from the current element. मतलब करंट एलिमेंट से कोई पॉइंट P है, करंट एलिमेंट से कोई पॉइंट P है, तो करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B। ये फॉर्मूला कहां से आया उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बायोट एंड सावर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया हुआ है। बट फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, सिमिलरली मैग्नेटिज्म में हम अलग अलग टाइप के करंट के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड था, दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मुझे बताएगा? Q by R square. तनिष फिर से लाउडली बोलो। Q by R square. हाँ मतलब 1/4 pi epsilon naught Q by। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से ये दोनों फॉर्मूला आप देखते हो तो वो सेम टू सेम ही है। 1/4 पाई यहाँ पे भी है, 1/4 पाई यहाँ पे भी है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? तो करंट एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन करंट एलिमेंट है, तो यहाँ पे ओरिजिन क्यों है? यहाँ पे करंट एलिमेंट है। आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी है, आर कैप यहाँ पे भी है, आर कैप यहाँ पे भी है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। ओनली द डिफरेंस इज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में 1/एप्सिलॉन नॉट है, वहां पे मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट है। ये जो है वो आपको पता है ये क्या है? It is the permittivity of a vacuum and this is a permeability. So friends, इलेक्ट्रिसिटी में परमिटिविटी है तो मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी है। तो 1/, जहां इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में जहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट आएगा, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी में एप्सिलॉन नॉट आएगा, वहां पे मैग्नेटिज्म में क्या आएगा भैया? मैग्नेटिज्म में क्या आएगा भैया? एप्सिलॉन नॉट के बदले मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट आएगा। वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू, उसका जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर है।
इसका यूनिट परमीएबिलिटी का यूनिट न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर है, सॉरी न्यूटन मीटर नहीं, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर है। ये परमीएबिलिटी का यूनिट जो है वो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर है। कैसे आया मैं आपको बताऊं, अभी बताऊं। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर है, तो मैं बताऊं आपको कैसे आया। चलो बट फिर से एक बार ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि कोई करंट एलिमेंट है तो करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बायो एंड सावर्ट को पता चला कि वो करंट एलिमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। नंबर 2, it is in the inversely proportional to the 1 upon r, it is in the inversely proportional to 1 upon r square। तो ये दोनों चीज को मिला के ये रूल बनाया बायो सावर्ट ने कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट एट द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर r with respect to current element, I repeat, magnetic field produced by the current element at the point having position vector r with respect to the current element can be given by mu naught upon 4 pi I dl cross r cap upon r square. It is also analogous to it is also analogous to electric field produced by the point charge. बट फर्क ये है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वहां पे मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट आ रहा है। अब ये म्यू नॉट क्या है, तो मैंने बताया कि भाई म्यू नॉट इज अ परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, उसका यूनिट फाइंड करता है। चलो फिर से वो फॉर्मूला लिखते हैं तो यूनिट पता चल जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है ना ये टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है। आईडीएल का यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर होगा। म्यू नॉट एज इट इज आई इंटू डीएल का यूनिट जो है वो एम्पियर इंटू मीटर है। फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर आपको पता होगा कि वो यूनिट लेस होता है। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है। 4 पाई का भी कोई यूनिट नहीं होगा, बट अपॉन आर स्क्वायर मतलब अपॉन मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, मुझे ये म्यू नॉट का यूनिट फाइंड करना था, तो बी का यूनिट जो है वो टेस्ला है। म्यू नॉट को मैंने एज इट इज प्लेस किया। आईडीएल का यूनिट जो है वो एम्पियर मीटर है। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, उसका कोई यूनिट होता नहीं है। एंड आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है, 4 पाई का भी कोई यूनिट नहीं है। तो अब सोच के बताओ कि ये मिनट का यूनिट क्या होगा। टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, 1 मीटर कैंसल, तो द यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज अ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, where Tesla is the unit of the magnetic field as we had discussed in the last lecture. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको हमें अज्यूम एक्सेप्ट ही करना है, बट दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला बाय द करंट एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। अब मुझे सपोज के पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे। ये तो जस्ट एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड मिला। अगर पूरे वायर का मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इंटीग्रल तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये वायर को बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड देन यू हैव टू टेक द वेक्टर समेशन, दैट इज अ इंटीग्रेशन। सो फाइनली आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, अगर पूरे वायर का अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द होल लेंथ ऑफ द वायर। पूरे लेंथ के लिए ये जो फॉर्मूला है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
कभी कभी यहाँ पे आर कैप के बदले वेक्टर आर लिखा होता है, तो अगर मैं आर कैप के बदले वेक्टर आर लिखता हूं तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, बिकॉज आर कैप कैन बी रिटन एज अ वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर कैप के बदले अगर वेक्टर आर लिखना है तो आर नीचे आर क्यूब हो जाएगा। चलो ये वायर का मुझे फॉर्मूला मिला, अब इसका मैग्नीट्यूड सोचते हैं। तो ये डीबी वापस से ये ऊपर के डीबी के फॉर्मूला में आ जाता है। तो डीबी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल। फ्रेंड्स आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। चलो तो ए आईडीएल का मैग्नीट्यूड आईडीएल। अब आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। 1। तो आर कैप का तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो ए हो गया, बी भी हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आईडीएल एंड वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा कहाँ का एंगल है? तो थीटा इज द एंगल, यहाँ पे फिगर में देखो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, where theta is the angle between vector IDL and vector R। तो ये IDL and R के बीच का एंगल है। तो मतलब मैग्नेट फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। अब डायरेक्शन की बात अभी हम करेंगे, अभी जस्ट हमने मैग्नीट्यूड डिस्कस किया, तो ये मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब इसका डायरेक्शन सोचते हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्शन के लिए एक चीज तो कंफर्म्ड है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये जो डीबी का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है? क्योंकि भाई आईडीएल क्रॉस आर के पा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करना पड़ेगा। चलो अब याद करो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या है। कशिश है वहां पे? कशिश हाँ सर। बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने का रूल क्या है? चलो कोई भी, आप में से कोई भी बताएगा मुझे? हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ना क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने का। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई कर सकते हो। बोलो किसी को स्टेटमेंट पता है या कुछ भी पता है उसके बारे में? सर वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की बात छोड़ दो अभी। अभी मैं आपको जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? The cross product of any two vector is in the direction of perpendicular to the plane formed by the two vectors. वेरी गुड। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है दैट कैन बी फाउंड बाय द राइट हैंड स्क्रू लॉ। आपको क्या करना है कि आपको राइट हैंड में स्क्रू लेके you have to put the screw perpendicular to the plane formed by that given two vectors। जो दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, you have to put the screw perpendicular to that plane formed by two vector and you have to rotate the screw from A to B if you want to find the A cross B, and if you want to find the B cross A you have to rotate the screw from B to A। तो आपको वो स्क्रू प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू को प्लेस करके आपको रोटेट करना है। तो दैट इज व्हाट इज द राइट हैंड स्क्रू लॉ। तो यहाँ पे आपको वही चीज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ यहाँ पे कौन से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है? बताओ तनिष, कौन से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? DL और R के आईडीएल एंड आर। तो देखो मैं यहाँ पे फिगर पे देखो फ्रेंड्स, तो आईडीएल का डायरेक्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये रहा डायरेक्शन जो मैंने ब्लू कलर से अभी मैं बता रहा हूँ, वो आईडीएल का डायरेक्शन है। एंड अभी ये रहा आपका वेक्टर आर का डायरेक्शन। तो आपको स्क्रू को रोटेट करना पड़ेगा फ्रॉम आईडीएल टू आर, मतलब आईडीएल से आर आप स्क्रू रोटेट करो इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर स्क्रू रोटेट करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब स्क्रू का डायरेक्शन, स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? आपको पहले आपके जो मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन है आपका, वही प्लेन हो जाएगा आईडीएल एंड आर का। दैट विल बी द प्लेन ऑफ आईडीएल एंड आर। उसके
परपेंडिकुलर स्क्रू प्लेस करो और रोटेट करो। तो बताओ अब आईडीएल से आर पे रोटेट करते हैं स्क्रू को, तो स्क्रू कहाँ पे जाएगा? आईडीएल से अंदर। आर से आर डी आईडीएल से आर तक आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट करते हो, स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाते हो, तो उसका एडवांसमेंट कहाँ पे होगा? कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा? बोलो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन। एंड इनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? तो ये जो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। बट सपोज के कोई पॉइंट यहाँ पे होता, लेफ्ट हैंड साइड होता, तो उसका जो वेक्टर होता ना, उसका पोजीशन वेक्टर वो ऐसे मिलता मुझे, यहाँ पे ऐसे मिलता। अब सोचो, अब मुझे ये बताओ कि अब आईडीएल से आर तक रोटेट करो स्क्रू, तो कहाँ पे? अब आईडीएल तो ये रहा जो है वही का वही है, बट अब अगर अब आईडीएल टू आर रोटेट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्यू पॉइंट पे कहाँ पे जाएगा? सर वो आपने इनिशियल जो पहले आर आर वेक्टर लिया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये पी पॉइंट पे वो अंदर जा रहा है, तो क्यू पॉइंट पे उसका क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो रोटेट करो स्क्रू तो वो बाहर के साइड आएगा, मतलब यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे आउटवर्ड। तो ये होना ऑब्वियस है, ये होना ऑब्वियस है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देखो मेरे मेरे सामने देखो, तो ये जो है ना वो करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। तो आपको याद होगा कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, सर्कुलर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, वो तो हमको पता है, वो एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया था, सॉरी ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो सर्कुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ से अंदर जा रहा है तो वो यहाँ से वापस से बाहर भी आएगा ना। तो पॉइंट पी से वो मतलब अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉइंट क्यू से वो वापस से बाहर भी आना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के आसपास सर्कुलर होता है। तो एक पॉइंट से मतलब एक साइड के पॉइंट से अंदर जा रहा है तो दूसरे साइड के पॉइंट से बाहर आएगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सर बहुत लैग हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वायर के आसपास सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो वो सर्कुलर फॉर्म में करने के लिए अगर वो कोई एक साइड से वो मैग्नेटिक फील्ड एक साइड से वो अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से उसको बाहर आना ही पड़ेगा। तो एक साइड से अगर वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो दूसरे साइड से वो बाहर आना ही पड़ेगा, बिकॉज वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है। अब रूल सुनो, अब मेरी बात सुनो, रूल क्या है? अब रूल ये है कि अगर आपको कोई वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, अगर कोई वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको क्या करना है कि आपको उस वायर को पकड़ लेना है। मतलब सचमुच नहीं पकड़ना है, मेंटली पकड़ना है आपको। करंट कैरिंग वायर है तो आपको वायर को राइट हैंड में पकड़ना है। योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आसपास जो फिंगर वाउंड होगा ना, तो फिंगर जो वाउंड होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो प्रैक्टिकली अगर आपको कोई वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है प्रैक्टिकली, तो यू हैव टू कैच द वायर in such a manner, you have to bring the wire in such a manner that your thumb is in the direction of current. You have to bring the wire in the right hand, on the right hand. तो राइट हैंड में वायर को पकड़ो, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, तो आसपास जो फिंगर वाउंड होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी। तो यहाँ पे मैथमेटिकली वी कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय द राइट हैंड स्क्रू लॉ मैथमेटिकली। बट प्रैक्टिकली आप राइट हैंड को वायर को राइट हैंड में पकड़ लो तो आसपास जो फिंगर बाउंड होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बायोट-सावर्ट लॉ। तो फ्रेंड्स स्टेट क्वेश्चन ऐसा है कि 3 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द बायोट-सावर्ट लॉ। उसका प्रूफ नहीं है, ओनली एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड
of a position vector of a point with respect to the element ideal which is carrying the current current I क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव to element ideal which is current carrying element at r position vector is given by mu naught upon 4 pi ideal cross r. गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, r कैप होना चाहिए, तो आइडियल क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे r कैप होना चाहिए. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? So this is the equation of the magnetic field of the current element. ये करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है. अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि भाई ये dB प्रोपोर्शनल टू I है, dB प्रोपोर्शनल टू DL है, dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा भी है एंड dB प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर भी है. तो ये dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा कहाँ से आया, समझ में आया ना? उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो sin थीटा भी पिक्चर में आ जाएगा. तो ये वापस से वही स्टेटमेंट यहाँ पे, मतलब पूरा करके वापस से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 वही लिया हुआ है. Where mu naught upon 4 pi is a proportionality constant, mu naught is the vacuum permeability and its value is a 4 pi 10 raised to minus 7. I had proved the unit टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, मैंने प्रूव भी किया. तो म्यू नॉट का वैल्यू जो है वो 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7 प्रैक्टिकली मिला हुआ है, उसको याद रखना है. एंड उसका यूनिट जो है वो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर है. डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद बना लो, परमीएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, आप खुद बना लो. तो ये बायोट सावर्ट लॉ है, उसका मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है. उसका मैग्नीट्यूड अगर करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. और उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, अब डायरेक्शन की बात है. तो द डायरेक्शन ऑफ अ dB is in the direction of perpendicular to the plane of cross product of ideal and vector r which is inside the plane of the paper at the point P. पॉइंट P पे वो इनसाइड है, और अगर पॉइंट Q यहाँ पे अपोजिट साइड कोई पॉइंट Q होता तो वो आउटसाइड होता. तो पॉइंट P पे इनसाइड, मतलब ये थ्योरी यहाँ पे खत्म हुआ. अब राइट हैंड स्क्रू लॉ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, 11th का कुछ वहां पे दिया गया है, तो एक्स्ट्रा है. वो राइट हैंड स्क्रू लॉ हमको पता है कि कैसे अप्लाई करना होता है. राइट हैंड स्क्रू लॉ कैसे अप्लाई करना होता है वो ऑलरेडी हमको पता है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, उसको निकाल दो, उसका कोई काम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको निकाल दो, उसका कोई काम नहीं है, वो कैंसिल कर दो. 18 का कोई काम नहीं है. ओके, डिस्कस द स्पेशल केसेस ऑफ द बायोट सावर्ट लॉ. तो फ्रेंड्स हमने ऐसा प्रूव किया कि कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उसका अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एलिमेंट, करंट एलिमेंट. तो वो हमने प्रूव किया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल ओनली द मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो उसका स्पेशल केस नंबर 1, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब ये हुआ कि ये कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और इसका जो वेक्टर आइडियल है, आइडियल वेक्टर ये रहा, एंड इसके एक्सिस पे कोई जगह पे यहाँ पे पॉइंट P है. तो अगर आप वेक्टर R ड्रॉ करोगे, वेक्टर R अगर ड्रॉ करोगे तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे. तो मुझे ये बताओ कि वेक्टर आइडियल एंड वेक्टर R के बीच का एंगल कितना हुआ, वेक्टर R एंड वेक्टर आइडियल के बीच का एंगल कितना हुआ. ये करंट एलिमेंट, 0. हाँ तो 0 हो गया. तो ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 सर 0. वो एक बहुत साइड. आवाज लैग था जय. यस सर.
देखो तो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है आवाज? एम आई ऑडियबल टू यू नाउ? अभी मेरा यस आवाज? सर। Yes, sir. तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई पॉइंट वायर के एक्सिस पे है, वायर के एक्सिस पे ही है, तो उसका वेक्टर आइडियल एंड वेक्टर आर के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। वेक्टर आर एंड वेक्टर आइडियल के बीच का एंगल जीरो, एंड साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई वायर के एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। एंड केस नंबर टू, केस नंबर टू, अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, वो करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर है कोई पॉइंट, तो वेक्टर आर एंड वेक्टर आइडियल के बीच में एंगल कितना होगा? 90। ओ, अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर है तो वेक्टर आइडियल एंड वेक्टर आर के बीच में एंगल कितना होगा? 90। 90. तो 90 डिग्री अगर एंगल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के लिए मैक्सिमम है। तो इट इज ऑब्वियस थिंग कि अगर एंगल 0 या 180 है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, एंगल 0 या 180 है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और 90 डिग्री होता तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम ही होगा। तो ये वो तो ऑब्वियस चीज है। सर हाँ बोलो। सर जो लाइटनिंग होती है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो सर आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी? होगा ना, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। सर तो वही ये मैग्नेटिक फील्ड तो केटू स्ट्रॉन्ग है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हार्डली स्ट्रॉन्ग है whenever सर। whenever a charge move, at that time magnetic field definitely generated, but the process of the lightning is very fast, so I can say magnetic field generates for the minor time। वो कुछ ही टाइम तक, जितने टाइम में वो लाइटनिंग होता है, मतलब चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब चार्ज आकाश में से जमीन में ट्रांसफर होता है, तो वो बहुत ही थोड़े ही टाइम के लिए ऐसा होता है। तो वो थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटिक, मोमेंटरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, 100% होगा। तो बोलो कहना क्या चाहते हो तो फिर? सर कहना ये चाहता हूँ कि अ, अजीब लगेगा बट जो मेटल बॉडीज होते वो मतलब हवा में नहीं उड़ेगी। क्यों उड़ेगी? क्यों उड़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के कारण। तो किसने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स बॉडी को हवा में उड़ाता है? सर मतलब हवा में नहीं बट वहाँ पे स्टेशनरी होके मतलब अट्रैक्ट होके बाइंडिंग फॉर्म में नहीं होगी, मतलब मेटल जो सारे बाइक से बाइक कह सकते। देखो मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो बहुत ही मोमेंटरली टाइम के लिए होता है। और दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम ही रहता है, बिकॉज उसमें म्यू नॉट आता है। और मैंने अभी आपको बताया कि म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है। म्यू नॉट का वैल्यू कितना बताया मैंने आपको? 4 pi into 10⁻⁷. 10⁻⁷, मतलब इट इज अ क्वाइट स्मॉल। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा कोई हैवियर बॉडी घूमने लगेगा या उसका कुछ मोशन होगा, वो सोचना बेकार है। दूसरी बात, हमने ये भी पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो चार्ज को दो ही चीज करवा सकता है। चार्ज को वो दो ही चीज करवा सकता है। वो क्या करवा सकता है? आइदर द चार्ज कैन परफॉर्म द सर्कुलर मोशन और द चार्ज कैन परफॉर्म द हेलिकल मोशन। तो अगर कोई बॉडी के अंदर चार्ज है तो वो चार्ज अंदर बॉडी के अंदर ही सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा, और वो इंडिविजुअल चार्ज है तो वो हेलिकल मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये चीज है, तो भी आप थोड़ा सर्च लगाना कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटनिंग। तो ऐसा कुछ नेट पे सर्च करोगे तो आपको थोड़ा बहुत उसका मतलब डिटेल में उसके कुछ एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको मिल जाएंगे, जो आप जो सोच रहे हो उसके रिगार्डिंग कंपेटिबली आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। ओके, बट आपका क्वेश्चन ये है कि जब लाइटिंग होती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? तो आई एम टेलिंग दैट yes, obviously whenever the charge moves magnetic field must be generated, it is a natural rule। तो उसका कुछ इफेक्ट आपको, आपके अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि उसका इफेक्ट मुझे फाइंड करना है, तो आप नेट पे थोड़ा सर्च लगाना, तो आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल मिल जाएंगे लाइटनिंग के टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके कुछ इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, लेट अस कम बैक टू द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, 19 अभी डिस्कस किया। 20th क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एज अ 2 और 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन ऐसा है कि राइट डाउन द सिमिलरिटी एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आप सोच के बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के में क्या क्या सिमिलरिटी है एंड क्या क्या उसमें डिफरेंसेस है। चलो मुझे बताओ सोच के, देखना नहीं है, देखना नहीं है आपको, आपको सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। चलो मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैन बी गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught q upon r square into r cap। एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर है। चलो अब मुझे ये बताओ कि कौन कौन से सिमिलरिटीज है। सर 1/4 pi r²। क्या बोल रहे हो? 1/4 pi r²। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि बोथ इज, आपका जो है ना उसको मैं थोड़ा और मतलब अच्छे से बताता हूँ। बोथ आर स्क्वायर इनवर्स लॉ। दोनों, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, both proportional to 1/r पे। चलो इज दैट क्लियर टू यू? दैट इज द वन सिमिलरिटी। चलो एनीथिंग एल्स? चलो ये पहला सिमिलरिटी है। दूसरा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केलर प्रोडक्ट है और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट मैं अभी सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। तो बोथ आर लॉन्ग रेंज, मतलब वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज तो होता जाएगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस तक वो अप्लाई होता जाएगा। डिस्टेंस के साथ डिक्रीज तो होगा, बट ऐसा नहीं है कि उसका रेंज बहुत कम है। दोनों लॉन्ग रेंज है, बोथ आर लॉन्ग रेंज। अब डिफरेंसेस क्या है? अब दोनों के डिफरेंसेस क्या है? સર કોઝ એના બંનેના કોઝિસ। क्या बोल रहे हो? So हाँ, electric causes। charge सो द कोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोज है वो चार्ज है। और चार्ज कैसा क्वांटिटी है पता है आपको? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। दिव्यराज सिंह वाघेला, कुछ पूछना है? दिव्यराज? नहीं सर गलती सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो कोज है वो करंट एलिमेंट है, एंड करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलो दोनों के कोस के बारे में समझ में आ गया। और कोई डिफरेंस, और कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन अ एंगल। इलेक्ट्रिक में एंगल नहीं आता है, बट आपको पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो उसमें एंगल आएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो वो एंगल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, while द मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज अ डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे ऊपर डिपेंडेंट है, बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चलो और कोई डिफरेंसेस है? ये बहुत ही मस्त डिफरेंस है अगर किसी को पता चले तो। सर वो लूप नहीं बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड लूप ओके, बनाता है।
दैट इज ओके कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। चलो और दैट इज ओके। चलो और कुछ। तो वो जो डिफरेंस है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम ले लेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम ले लेंगे, यहाँ पे नहीं, उसके डिस्कशन नहीं करते। और एक चीज ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज इन द सेम प्लेन, जहां पे सोर्स है उसी प्लेन में, इज सेम प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी प्लेन में है। जैसे अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है ऐसे, जो इस प्लेन के कोई भी पॉइंट है तो वैसे ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव का इनवर्ड डायरेक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सेम प्लेन में रहता है, जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप फाइंड करते हो वो पॉइंट एंड जिसके द्वारा प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा जो प्लेन, मतलब सोर्स एंड पॉइंट, सोर्स एंड पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द फील्ड, वो दोनों के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होता है उसी प्लेन के अंदर होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ, इट इज अ परपेंडिकुलर to the plane of point and source। तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो these are the dissimilarity और these are the differences between them। तो यहाँ पे देखो कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है, तो वो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, ये जो क्वेश्चन 21 है वो मैक्सवेल ने निकाला था। तो मैक्सवेल ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। मैक्सवेल ने ऐसा प्रूव कर दिया था कि जो ऑप्टिक्स, मतलब ये जो लाइट है, लाइट रेज, सन में से जो लाइट रेज आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो मतलब मैक्सवेल ने क्या किया, एक तीसरी ब्रांच को भी लिंक कर दिया। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लिंक हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। देखो मेनली फिजिक्स का अप्रोच कैसा होता है खबर, मतलब मेनली फिजिक्स का अप्रोच कैसा होता है पता है आपको? फिजिक्स का अप्रोच दो पार्ट में होता है। 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको देखा हो तो, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में ये दो चीज करना होता है। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेट करना होता है फिजिक्स में चीजों को, और एक ही चीज में से सबको डिफरेंशिएट भी करना होता है। जैसे इंटीग्रेशन करना मतलब अगर आप ब्रॉडली देखो तो पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग से एक ब्रांच आया, मैग्नेटिज्म अलग से ब्रांच आया, ऑप्टिक्स अलग से ब्रांच आया, बट अब वो सारे इंटीग्रेट हो गया, सारे कंबाइन हो गए। ऑर्स्टेड ने इंटीग्रेट कर दिया किसको? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। ऑर्स्टेड ने वो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों कंबाइन कर दिया। अब मैक्सवेल ने क्या किया पता है? मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऑप्टिक्स के साथ कंबाइन कर दिया। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, प्रूव कर दिया था कि जो सन में से जो रेडिएशन आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो ये जो पार्ट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैक्सवेल के थियरी में से प्रूव हुआ है। परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, आपको पता है कि 8.85 10⁻⁻12 उसका यूनिट आपको पता होगा, उसका यूनिट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आई रिपीट, परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम 8.85 10⁻⁻12 यूनिट जो है उसका वो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है। एंड permeability of a vacuum 4 pi into 10⁻⁻7, इसका जो यूनिट है वो टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर है, और इसका यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। बिकॉज हमने डिस्कस कर दिया था कि F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर दिया। तो न्यूटन इज इक्वल टू टेस्ला एम्पियर मीटर, तो टेस्ला को हम न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी बुला सकते हैं। टेस्ला को हम न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर भी बुला सकते हैं। तो अगर टेस्ला के बदले न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर प्लेस करते हैं तो न्यूटन, ये जो म्यू है वो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक काम करना, घर पे जाके 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना,
तो आपको ये मिलेगा कि ये 9 इंटू 10⁻16 मिलेगा। एंड अगर इसका यूनिट फाइंड करोगे ना आप, तो आपको इसका यूनिट है ना मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। चलो करना है, देखो कर देते हैं, चलो। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू तो आप निकाल देना, वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, यूनिट निकालते हैं। चलो, तो 1 एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड म्यू नॉट का यूनिट, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया। अब म्यू नॉट का यूनिट जो है वो हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन न्यूटन गेट कैंसल्ड, तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब आपको पता है कि Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी, तो कूलम्ब इज इक्वल्स टू एम्पियर सेकेंड। तो कूलम्ब के बदले आप लिख सकते हो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो एम्पियर स्क्वायर कैंसल, तो क्या मिल गया आपको, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मिल गया। तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था आपको कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो वो 9 इंटू 10⁻16 यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका रूट निकाल दो, इसका रूट निकाल दो भैया, तो क्या हो जाएगा, तो वो तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज व्हाट इज अ तो बताएगा ये क्या है। वेलोसिटी ऑफ तो अब जाके ये पता चला आपको कि ये तीनों ब्रांच मिक्सअप हुआ। देखो ये जो इक्वेशन है, फाइनली हमको एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी इक्वेशन मिला। एंड द इक्वेशन इज 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे तीन ब्रांचेस का इंटीग्रेशन हुआ। ये सी का मतलब कौन सा ब्रांच आया, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब ऑप्टिक्स। म्यू नॉट का मतलब क्या आया, मैग्नेटिज्म। और एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो एक सिंपल सा इक्वेशन है वो तीन ब्रांच को लिंक कर रहा है, तीन ब्रांचेस को लिंक कर रहा है। ये मैक्सवेल ने ये काम किया था। तो मैक्सवेल had proved this thing that there is a relation between the velocity of light, permittivity and permeability। तो permeability and velocity of light के बीच में कुछ रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमने आज प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछने के लिए नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि गिव द रिलेशन बिटवीन द वैक्यूम परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। So this is what is the relation that we are talking about. Friends, आज का सेशन मैं यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ। Don't miss the next lecture, because next lecture में जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो 100% बोर्ड के एग्जाम में पूछ सके ऐसे थ्योरीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज का सेशन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आपने अगर पेपर सेंड नहीं किया है 100 मार्क्स का, तो कंपलसरी पेपर सेंड करना है आपको। और अगर फीस बाकी है तो फ्रेंड्स प्लीज पे द फीस एज वेल, आपको फीस भी पे करना है अगर बाकी है तो। किसी को कुछ पूछना है, आज का सेशन मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। सर बोलो। सर आपने वो फॉर्मूला के अंदर आर कैप लिया था, वो क्या है? आरकेप जो है ना वो देखो ये, जस्ट अ मिनट, ये रहा, देखो ये रहा। ओके, लुक एट दिस फिगर। तो क्या ये आपके मोबाइल में फिगर आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे कोई लाइन एलिमेंट है और ये वेक्टर आर है। लाइन एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर आर है। और ये जो आर कैप है ना वो इसका यूनिट वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। यस सर। तो आर कैप क्या है, तो कि भाई जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट का करंट एलिमेंट से उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है वो। इज इट ओके? यस सर। चलो, और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। होमवर्क में अभी मैं आपको बोल रहा हूँ क्या करना है। यू मस्ट डू द होमवर्क, यू मस्ट गिव ऑल द एग्जामिनेशंस। अब आपका हर एक लेक्चर में यहाँ से रोहित भाई आपका मॉनिटरिंग करेंगे। तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को?